कांग्रेस से बहुत लोग आने वाला है बीजेपी इन डेज टू कम. They've contacted you. दे आर इन ऑलवेज इन टच विथ मी. यार बहुत लोग आएगा. एक बार मेरा तो लगता है सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ के लगभग सब लोग आ जाएगा एक दिन में. ऑपोजिशन विल बी इज इनबिल्ट टू आवर सिस्टम. लेकिन ऑपोजिशन का नाम में आप गांधी फैमिली को मत रखिए. Okay. वो एक्सपायर्ड ड्रग्स है. प्रॉब्लम एक ही है राहुल गांधी का, एक सिस्टमेटिक सीरियसनेस नहीं है. लेकिन सबसे जो दुखाता है वो बात है, ही हैज ए बिग फैमिली ईगो. क्या मैं एक फीडुअल लॉर्ड हूँ? ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स. Namaste and Jai Hind. I'm Smita Prakash and you're watching ANI Podcast with Smita Prakash. Today I spoke with Himanta Biswa Sarma, the Chief Minister of the northeastern state of Assam. He is controversial to say the least, and you will see in the interview how he spoke no holds barred. Thank you very much for joining us today on this podcast with Smita Prakash for ANI. I'm really honored that you speak with us. And, I've been wanting to speak with you, sir, for a long, long time. Haven't had the opportunity because you're such a perfect television material. Controversy's favorite child, right? So tell me, is this like how you've always been? मैं तो बोलूँगा, doesn't matter कि कौन है power में. My simple theory of life that don't hide anything from people. You are a different person in home, then you are a different person in studio, then you are a different person in office, then suddenly you are very, very friendly in television, but when real life people wants to meet you, they find you something else. So I want to be that person who is the same everywhere. I mean, if you meet me in my home, I am the same person. If you meet me in studio, I am the same person. And what you feel, you express. Then let people judge. But the trappings of power and the burden of the chair is so much, right? Like, people will come and tell you, like IAS officers will come and tell you, you can't say these things. That happens, no? Look, most of the officer, whatever they wants to say, they say in the private space. Ultimately, their views is known, or we come to know, you come to know. So people think that they are smarter than the people. But actually, people has lot of medium to find out who you are, what is your philosophy, what you believe. So my simple funda is that if you are in politics, that be as transparent as much possible to people, and whatever you feel, just say. And of course, sometimes being in party, being in government, something you cannot say, those rider will apply. But otherwise, you have to be as simple as you can be, and don't try to hide anything from people. See, usually the reason I said also controversy's favorite child, because even though you're chief minister, phatak se you say things, no? Like just now you talked about chaddi. Like can't imagine, no, that chief minister will talk about a chaddi and RSS ka chaddi jala diya, tumhara chaddi kidhar, udhar ka chaddi kidhar. But you just said it. Because I feel that when they put up that RSS picture, that was a bad taste. And when somebody did something in bad taste, it is important to remind your own past or whatever you did to earlier, other people. So you cannot be holy cow at all the time. So I thought it is important for me to expose them. And when I do that, I actually do not consult with anybody. Okay. And I don't talk to my party people. I don't do anything. But you're such a social media sensation. As soon as you said that, chha gaye aap sab jagah, because everybody like, okay, here's a man who replies in the same manner. अब देखिए, एक national political party है. You are in a say presumably ठीक है, आप ठीक ही कर रहे हैं. You are on a bigger objective of भारत जोड़ो. आप पैडल में भी जा रहे हैं. बट उस समय आपका सहरा में भारत का गरीब आना चाहिए था. इस समय आपका सहरा में भारत का अंडर प्रिविलेज लोग आना चाहिए था. भारत का इश्यूज आना चाहिए था. भारत को कैसे, आपका विजन क्या है? इफ यू आर वर्किंग सो मच, देन स्पीक अबाउट योर विजन अबाउट इंडिया फॉर नेक्स्ट 25 years.
when how India, according to you, should be look like when India is on 100. India will be there on 100. But you are talking about the half pen of RSS. So, what you get the impression that this entire jatra, whatever it is a dikhwaya, you have lot of hatred inside you, and you just trying to, in the guise of a jatra, you are just trying to ventilate your hatred, your whatever frustration you have. So मेरा मन में लगा नहीं आपको भी दिखा देना चाहिए because So you think कि ये जो यात्रा पे भारत जोड़ो यात्रा इससे कोई जुड़ नहीं रहा है आपको लग रहा है? देखिए 2-3 मैं इशू बताता हूँ. पहला, कोई राजनेता इतना बड़ा वर्क करता है, generally we say it is okay because in election time I also prefer not to be in car, and every day I do my election campaign by walking. At least 20 kilometer I walk every day. And during that 2 months cycle walking, because I think it is a best medium. But when you go and you meet people, so you have to be very, very careful that what vision you are giving to people. What is your dream? When you meet people, you talk about India. You are talking about Narendra Modi. You are not talking about India. Then you are going to some priest or some father. There you know that if he's a controversial man, if you talk to him, there will be something which will come out of him. It will create a repercussion. But he probably didn't know, no? It must have been his people who told him कि मिल लो. I mean, dekho, in my view, if I am coming today in ANI office, I must have all the information about you. Okay. If I just say, if I pretend that my staff has done, my staff is my extension. Okay. So whatever they have done with my consent, and tomorrow you cannot put blame on my staff. But you know Rahul Gandhi very well, right? I mean, you know his dog more than you know him, I think, right? That whole dog thing, you made that dog so famous, Piddi. एक बार बताओ तो what happened that day, sir? नहीं, I did not want to repeat that because ठीक है वो story एक बार चल गया है. But it is not only about dog. जैसे अभी हम लोग बात कर रहा हूँ. आपका घर में भी dog होगा, मेरा घर में भी dog है. टेबल में बिस्किट होगा. तो अगर आपका डॉग वो बिस्किट टच कर लेता है और she or he try to have it, then what you will do? You will give the whole plate to him or her. And then you will ask for a fresh one. But हमारे लोग वही प्लेट से उठा के बिस्कुट खाना शुरू कर दिया. Just to please Rahul Gandhi. So was that tipping point? मतलब कि क्या? वो tipping point नहीं है. That day, yeah, tipping point mean climax. That day when I do not want to name because both of the actor in that particular incident has left this world. But मेरा issue यही था कि you are not serious. I was trying to tell him कि if you do not go for course correction, you are going to lose Northeast. So it was a serious discussion of that level. जो अभी भी चल रहा है. This was how many years back, sir? I am talking about 2015. 15. Problem एक ही है राहुल गांधी का. एक ही प्रॉब्लम है राहुल गांधी का. राहुल आप गांधी तो का रोज यू आर गिविंग. राहुल गांधी का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? हाँ. पहला बात शुरू होता है, ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स. अच्छा. तो प्रोबेबली वो एक जो काम उनको करना नहीं चाहिए वो काम वो कर रहे हैं. अभी आप देखिए वो एकदम मेरा जो उनका साथ फास्ट देन एक्सपीरियंस था. फास्ट ऑफ एवरीथिंग स्टार्टेड विद नॉन सीरियसनेस, देन एरोगेंसी. नॉन सीरियसनेस बोले तो मतलब कोई भी काम में अभी आपसे बात कर रहा है, 2 मिनट में वो बाहर जाके जॉगिंग करना शुरू कर देगा. ओके. तो यू विल कीप ऑन सिटिंग हियर. हाँ, वेटिंग. एंड हम लोग बात कर रहा था, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बातें वगैरह कुछ नहीं. मेरा साथ जब तक मेरा अभी भी लोग मुझको बोलते रहता है कि आप बात कर रहे, तुरंत दूसरा रूम में चला जाएगा, फिर हाफ एन आवर बाद ही विल अराइव. कोई मतलब एक सिस्टमेटिक सीरियसनेस नहीं है. लेकिन सबसे जो दुखाता है वो बात है, ही हैज ए बिग फैमिली ईगो. क्या मैं एक फीडुअल लॉर्ड हूं? रियली? ये जो प्रॉब्लम है,
आज भी आप देखो बोल रहे हैं मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूं, लेकिन सब डिसीजन आप लेते हैं. अगर आप कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, आपने लोकसभा चुनाव हारने के बाद यू हैव टेकन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, then why entire party is behind you now? So you keep saying, and the BJP also says कि feudal order. Okay, no doggies, but biscuit is here. So the BJP also says it, and everybody says कि feudal mentality है इन लोगों का. पर if you see the family, पिछले क्या 15 साल, more than 15 years, they've not taken any post, no, in government. मतलब and you see them all the time कि गरीबों के साथ होते हैं. You see Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, they go to poor people's home. You never see them. First of all, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. They goes to poor people house. हाँ. But poor people उनका घर में आते हैं. वो तो हमको पता नहीं ना, फोटो तो आते हैं. वो तो फोटो रिलीज नहीं होता है. सेम डाइनिंग टेबल में पोर पीपल का साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डिनर करने वाला फोटो कभी आते हैं? आज से आने तो अलग बात है. तो एक जो पॉवर्टी टूरिज्म है, ये तो मैं बिल्कुल इसको एनरोज नहीं करता हूँ. आप दलित का घर में जाते हो, बट एक बार दलित का खाना उना खा के आया है, बट रेसिप्रोकेसी भी तो आपका काम होता है ना. कभी दलित को भी आपका घर में ला के खिलाओ. वो तो आप कहीं नहीं करते हो. सबसे बड़ा बात है जब पोस्ट नहीं है बट यू आर एक्सरसाइजिंग पावर. आज आप देखिए यूपीए 1 यूपीए 2 साला कोई उनका पोस्ट नहीं है, लेकिन सब उनका घर में जाते हैं. वो तो फिर आई मीन यू नो दैट सर कि वही बात है. आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि दे एंजॉयड ऑल द पावर. But those who were in the Congress knew ना कि ये सारे जानते हैं. दैट इज व्हाई कि कांग्रेस लोगों का मन में एक था कि we cannot think beyond Gandhi. But अभी वो सोचना शुरू हो गया है. Okay. That is why you have seen that presidential election they'll choose a non-Gandhi. नहीं, non. आज देखिए, आज प्रेसिडेंट जो भी है, राहुल हैज टेकन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने लोकसभा चुनाव मेरा हाथ में पार्टी हारा, सो आई विल नॉट बी प्रेसिडेंट. बट आज भी पार्टी कौन चला रहा है? भारत जोड़ो यात्रा कौन कर रहा है? Exactly. पूरा पार्टी किसका पीछे दौड़ रहा है? That means you want to enjoy the power without accountability. Okay. जब डेमोक्रेसी में somebody wants to enjoy power without parliamentary accountability, without party accountability, without accountability the peoples, that is the most dangerous thing. So let me get back to the time that you quit the Congress. ठीक है? तो there was no second thought कि बीजेपी में जाना है, कि did you think कि किसी और पार्टी टीएमसी में चले जाऊंगे कहीं और? 22 साल हम कांग्रेस से जुड़ा रहा. वही तो. हाँ. Obviously in Congress culture, I must give credit to Congress party. एक हवा बना के रखा जाता है कि देखो बियॉन्ड गांधी फैमिली आपका कुछ नहीं है. कोई भी पार्टी, कोई जैसे आज मैं रिजाइन दिया, कांग्रेस स्पोक्समैन क्या देगा रिप्लाई कि यू हैव बिट्रेड द फैमिली. दे विल नॉट से यू विल बिट्रेड द नेशन. Yes, they said that about Ghulam Nabi Azad. Everybody कि आपको फैमिली ने इतना दिया. अरे मुझको तो देश ने दिया, मुझको देश का लोगों ने एमपी बनाया. अगर मैं मंत्री हूँ, बिकॉज आई हैव बिकम एमपी, मुझको तो लोगों ने वोट दिया. तो ये लोग एक हवा क्रिएट करता है कि फैमिली ने आपको मंत्री बनाया. तो ये माहौल कांग्रेस में है. तब जब मुझको ज्वाइन करने का मौका आया, या आई हैव डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ द पार्टी, इट टुक सम टाइम. Ultimately, I'll say you a very personal story of mine. That night I was thinking, I did not meet anybody, but I was thinking that I have to move out or not moved out or quietly go back to the court, because I decided I cannot. Yeah, you're a lawyer. Everybody knows that. I cannot work with this guy. तो मेरा बच्चा उस समय, he was just I think studying in class 9. तो मेरा बच्चा ने मुझको बोला कि पापा हमारा स्कूल में सब डिस्कस करते हैं कि ये राहुल गांधी का, हमारा स्कूल का ही वो फॉर्मर स्टूडेंट था, डून स्कूल. हाँ, लेकिन राहुल गांधी का कोई भी बात हम लोग को इम्प्रेस नहीं करता है. और थोड़ा सा बाकी वर्ड भी यूज किया जो व्हिच आई डोंट वांट टू टेल, पीपल नोज इट. दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि भाई अगर क्लास 8 का बच्चा का मन में भी ये व्यू है, who is not otherwise involved in politics, means you should not stay there at all. Okay. Then next point come
When I decided to join BJP, मेरा मन में डर था कि people will actually may not appreciate that because 22 साल का बाद आप आते हो. मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके मैं गुवाहाटी गया. कोई पूछा नहीं किसी ने बीजेपी में कि आप पर्सनल वेंडेटर है आपका? नहीं, वही है. थोड़ा सा लोग, मेरा मन में कंफ्यूजन था. यहाँ में तो ज्वाइनिंग हो गया. फिर मैं जब गुवाहाटी गया, एयरपोर्ट में मैं उतारा, there were sea of people. मैंने जीवन में इतना क्राउड कभी नहीं देखा. फ्रॉम एयरपोर्ट टू 16 किलोमीटर दोनों तरफ लोग ही लोग था. तो मैंने जस्ट आई आस्क माय क्वेश्चन, अरे आप तो इतना बड़ा नेता नहीं है, आप खाली मंत्री ही था, आपके लिए क्यों लोग खड़ा है? That point of time we realized how When the administration was Congress at that time. तरुण गोगोई जी ही सीएम था. मैंने एयरपोर्ट उतारा, कुछ गुवाहाटी से मुझको व्हाट्सएप आते रहा कि बहुत लोग है. सो आई एस्टिमेटेड क्राउड अराउंड 3,000 to 4,000 कि ठीक है, मेरे लिए वही बड़ा है. बट जब आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 एंड दैट टू व्हेन स्टेट वाज नॉट विथ बीजेपी. बट यू कैनॉट बिलीव फ्रॉम एयरपोर्ट टू हैंगराबाड़ी बीजेपी पार्टी ऑफिस 16 किलोमीटर. दोनों तरफ लोग, जो गुवाहाटी में लोग नहीं आते. गुवाहाटी में बहुत ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में सिटी है, नॉट लाइक बंगाल. वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स का साथ आइडेंटिफाई नहीं करता है. इतना दोनों तरफ लोग. तब मुझको लगा कि मेरा बच्चा और मेरा पीपल का जो पब्लिक का व्यू था वो सेम था. हम ही लोग कोई आइसोलेशन में रह जाता था लास्ट हर कोई समय. थोड़ा डर फॉर चेंज, मतलब कि एक स्टेटस को से हटना. एक क्या हुआ, जो मैं एयरपोर्ट में उतारा एंड आई सो द पीपल, देन मेरा थोड़ा अपोलॉजी हुआ कि मैं क्यों कांग्रेस में रहा. बिकॉज आई थॉट दैट वी वेर वॉकिंग अगेंस्ट पीपल. लोग चाहते हैं कि देश में चेंज जाना चाहिए. आज भी आप देखो बहुत सारा स्टेट में पीपल वांट टू थ्रो आउट कांग्रेस, बट हमको जाना पड़ेगा भाई. हम हैं यहाँ में. इट्स अ बिग डिसीजन. एक बार आई टेल यू ऑनेस्टली, एक बहुत पहले की बात है. आई वाज टॉकिंग टू वीपी सिंह एंड आई हैड गॉन फॉर हिज कैंपेनिंग. तो उस टाइम मिडिल क्लास मसाया वगैरह चल रहा था. ही वाज अ राजा. कहाँ मिडिल क्लास के थे वो. तो मैंने कहा कि गेटिंग आउट ऑफ द कांग्रेस क्यों नहीं, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? ही सेड एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है. गेटिंग आउट इज हार्ड. इट इज वेरी हार्ड बिकॉज you think that too? Yes, because the day you join the Congress, Congress has an inside culture कि your life start and end with Gandhi. जैसे आप कोई गुरु का साथ जुड़ जाते हो तो you surrendered everything to that guru. But Gandhi sir for this, मतलब कि do they tell you, कि एक माहौल है. I don't know who has started the mahal, who will finish that mahal. But that ecosystem is very strong in the Congress. Okay. आप अगर पार्टी का स्पोक्समैन भी हमेशा सुने, you betrayed the family, you betrayed that. I mean, the family, right? I don't know from महात्मा गांधी से ये कब इंदिरा गांधी हो गया पता नहीं. People had that devotion to Mahatma Gandhi, but they have successfully inherited that legacy into the second Gandhi family. Okay. फर्स्ट गांधी फैमिली इज महात्मा गांधी. एक कल्ट वर्शिप जैसे होता है. जो महात्मा गांधी के लिए लोगों का जो व्यू था, वही व्यू कांग्रेसी लोगों का ये गांधी फैमिली का ऊपर हो गया. Who started it, how started it, I don't know, but they did it very successfully. Or they did it or party did it. Let me be fair. But when you moved, complete change. वो क्या होता है, when जो आते हैं, even you read the resignation letter of Ghulam Nabi Azad, even you read my resignation letter in 2015, the first 2 paragraphs will look like a very, very sad picture. That you don't want to come out. जैसे घर से आप माँ से आपको विदा लेना पड़े. आपको शादी में आप बेटी हो, ultimately you have to marry, you have to go out. Very, very fast 2-3 paragraphs will be very, very emotional. Then silently, last paragraph we will see anyway we have taken that decision, but we will be loyal to you, like that you will write. Because till that time you will be in Congress. Till you. वहाँ से जब नेक्स्ट दुनिया में आ जाते हो, पहला कल्चरल शॉक हो जाता है. भाई ये भी है. I'll tell you a small story of Pema Khandu and me. I'll tell you a very small story. क्या हुआ, बीजेपी में हम लोग ज्वाइन किया. देन उड़ीसा पार्टी नेशनल कन्वेंशन था. हम लोग पहला दफा पार्टी का कार्यकारिणी में गया.
हमारा बीजेपी का कार्यकारिणी में क्या होता है कि जब लंच डिनर होता है, यू जस्ट सिट लाइक दैट. आई मीन यू कैन सीट विथ पीएम ऑल्सो, यू कैन सीट विथ एचएम ऑल्सो. आई मीन राइट हैंड एंड इफ यू सी जैसे वो फौज में बड़ा खाना होता है, सब लोग साथ में सारे बैठते हैं. लोग होता है. एंड इट इज इफ यू सी इन लेफ्ट हैंड इट इज निर्मला सीतारमन, राइट हैंड यू विल सी पीयूष गोयल, देन नेक्स्ट स्टेप यू विल सी अमित शाह जी. आई मीन इट इज लाइक दैट. तो मुझको पेमा खांडू आए बताया, दादा ये क्या साज है, ये हम लोग क्या देख रहा हूँ. मैं बोला पेमा भाई क्या है. बोले देखिए दादा ये लीडर लोग हमारा साथ ऐसे मिल रहा है. जीवन में तो हम लोग कांग्रेस में रहा, कभी तो नजदीक में भी जाने का मौका नहीं मिला. तो that kind of cultural shock we got when we come to BJP, because BJP में आप मंत्री लोगों से मिलने जाइए, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, I am not saying छोटा, if my post is very big responsibility at Delhi, somebody is doing a booth level worker, so hierarchy wise जो भी है कि, लेकिन एक बूथ लेवल कार्यकर्ता भी एक बीजेपी का मंत्री का घर में जाते हैं, he gets that warmth. Okay. एंड मैंने सबसे चेक किया हूँ. That's the RSS training की क्या है? संस्कार तो होगा संघ का, डेफिनेटली देयर विल बी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दैट, बट आपको वो नहीं मिलेगा कि यू आर कमिंग टू मीट ए फिडुअल लॉर्ड. Okay. कांग्रेस में क्या होता है, गांधी फैमिली तो फिडुअल है ही है, बाकी लोग उससे ज्यादा कॉपी कर लेता है. जो छोटा छोटा उनका लोग है वो तो और ज्यादा दिखाता है. So when you join वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में रह रहा है. रिफ्लेक्टेड ग्लोरी और बहुत ज्यादा है, खास करके उनका जो आसपास में रहता है. सब लोग तो चले गए आसपास वाले लोग. नहीं, तो अब कोई लोग आसपास वाला नहीं जाएगा. अभी तो सुन रहे हैं कि जब व्हाट जयवीर शेरगिल एंड गुलाम नबी आजाद नहीं, सिंह वो साहब लोग सिक्योरिटी गार्ड है. वो लोग हाँ वही एक सिक्योरिटी गार्ड है. देन देयर आर फ्यू पीपल, देयर रिफ्लेक्टेड ग्लोरी इज ह्यूज. आई मीन आप सोच भी नहीं सकता हाउ दे बिहेव विथ ए पब्लिक लीडर. जब आप बीजेपी में आते हो, देयर इज ए ह्यूज कल्चरल शॉक. हम लोग को 6 महीना लगा टू एडजस्ट देयर. ओके. 6 महीना मेरा, बीरेन्द्र सिंह जी का, पेमा खांडू जी का, हम लोग को काफी समय लगा. हाँ. भाई कोई गलती तो ना हो जाए, लोग बुला रहे हैं बेडरूम तक आ जाओ, लोग बुला रहे हैं सिटिंग रूम तक आ जाओ, बिकॉज हम लोग का डेस्टिनेशन बारेंडा ही है. हाँ. इन एनी कांग्रेस कल्चर यू मीट एनी बिग लीडर. हाँ. अगर इफ यू आर मीटिंग बोथ लेवल कार्यकर्ता इज मीटिंग ब्लॉक प्रेसिडेंट, ही विल आस्क बोथ कार्यकर्ता टू सिट इन बारेंडा. इफ ब्लॉक लेवल प्रेसिडेंट इज मीटिंग, सीरियसली सिर्फ वरांडा तक, ड्राइंग रूम तक नहीं आ कभी सकते. नहीं, कोई नहीं बोल सकता है किसी ने ड्राइंग रूम में गया है, मैं साइलेंस करके बोल सकता हूँ. ये इट इज नॉट अबाउट गांधी डज इट. हाँ. I'll say वो तो tell you the हायरार्की thing. हो गया. बोथ कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष का घर में आएगा तो बारेंडा में बैठो. मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का आएगा तो बोला बारेंडा में बैठो. जिला अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट को आएगा तो बारेंडा में अच्छा, बैठो. आप कहाँ तक पहुंचे? आप तो मंत्री थे. देखिए मेरा कुछ फॉर्चून था एंड बाय 2009 से 2015 तक जो लास्ट 6 ईयर था, हाँ. उसमें कोई जगह में ड्राइंग रूम तक पहुंचा तो ठीक है. तो अच्छा, ऑल्सो डिड यू फील दैट जो यूपी के लोग थे या फिर प्लेन्स के लोग थे, उनके जो चीफ मिनिस्टर्स या एमएलएज, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कम? ना बारेंडा सबका ही डेस्टिनेशन है. वो कोई मुझको किसी ने आप पूछिए, if you ask me have you seen the dining room of Amit Shah ji, I say yes. Not only me, many Karyakarta, at least there will be thousands of BJP Karyakarta who has eat in Amit Shah dining room. I can give you guarantee. There will be many more people who must have shared many intimate moments. जी, वाजपेयी जी, also all of them. मैं सुनते जाता हूँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का कार्यकर्ता को मिलता है. They explain so many intimate story with नरेंद्र मोदी जी. Okay. पर हमारा पास कोई स्टोरी नहीं है. If you मतलब when you were in the Congress. हाँ. कोई हमारा means I am just thinking that I am a Congress and all other. I am just pausing myself as a congressman. हमारा पास कोई स्टोरी नहीं है. Okay. कि राहुल गांधी जी का साथ ऐसा था, ये ऐसा हुआ, सोनिया गांधी जी का साथ ऐसा हुआ. आपका वही स्टोरी, आप मिलने गया था, एसपी जी का 2 एक धक्का खाया. You will have only that story. आगे वाला कोई स्टोरी आपका नहीं है. You will not know how many children they have, where they study. So personal warmth is never shared. Okay. तो कोई वो संबंध होता ही नहीं है कि भाई we are belongs to a party, we have spent the best of our youth in this party. 22 साल 25 साल हो गया, 30 years हो गया, कोई जीवन दे दिया,
बट इफ यू आस्क भाई वो लीडर का बेटा कहाँ कितना बड़ा हुआ है, अच्छा उनका बेटा है. वी कीप ऑन आस्किंग जर्नलिस्ट अबाउट जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट ओपन. Correct. So So you, when you came to the when you came to the BJP, it was as if people were saying कि हाँ अब शर्मा जी को responsibility ले दिया है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का सैफरनाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि बीजेपी, सैफरन बोले तो बीजेपी, इट शुड बी बीजेपी नाउ, कांग्रेस को हटाओ बीजेपी को लाओ, पूरा नॉर्थ ईस्ट. एंड मेनी पीपल से दैट यू वर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द चेंज. ऐसे कोई था, कोई एजेंडा था? ऐसा कोई, जब मैंने ज्वाइन किया, एक उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी था. एक पार्टी में एक डिसीजन हुआ था मोदी जी का नेतृत्व में कि पार्टी को एक्सपांड करना चाहिए टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ. सो एक्सपांशन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट वाज ए एजेंडा बिफोर द पार्टी. तो जब हम लोग ज्वाइन किया, हम लोग को तुरंत एक मिशन मिल गया कि लेट अस वर्क असम. हो गया असम, देन लेट अस वर्क इन मणिपुर. ये नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बोले जब तो असम को जब चुनाव जीता, सोनोवाल साहब ने वोट लिया. वोट लेने का बाद अमित शाह जी ने हम लोग सबको बोला कि तुम लोग आ जाओ, ये होटल में हम हैं. हम पूरे नॉर्थ ईस्ट का लीडर्स लोग वहाँ चला गया. तब he was president. He said that प्रधानमंत्री चाहते हैं कि we should expand organically towards entire northeast, and we cannot ignore the regional aspiration in the process, because in northeast you have to take, or you have to go along with the aspiration of various tribe, various institution. उन्होंने बोला जे let us create an umbrella and let's Himanta take it over for now. एंड ये अम्ब्रेला का पार्टी का काम पार्टी से चलेगा, बट थ्रू दिस अम्ब्रेला विल कीप ऑन एकोमोडेटिंग रीजनल एस्पिरेशन टू इट, बिकॉज बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी, वी हैव नेशनल आउटलुक, बट रीजनल एस्पिरेशन भी स्पेस मिले. मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि रीजनल पार्टी हावी हो रही है ओवर रीजनल एस्पिरेशन. नहीं, अमित शाह जी जो भाषा बोलता है नेडा का मीटिंग कि भाई आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ. आई एम माई पार्टी इज द बिगेस्ट इन एंटायर वर्ल्ड, बट व्हेन आई एम सिटिंग इन द प्लेटफॉर्म ऑफ नेडा, आई एम जस्ट वन ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट लाइक एनी ऑफ यू. सो दैट्स द टाइम when actually from the biggest political party he comes down and he become a equal to a maybe a district level regional party. So that kind of humbleness and that kind of culture of BJP actually वो बहुत बड़ा एक politically ये हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट को पॉलिटिकली लोगों का इमेजिनेशन में आ गया. सो नॉर्थ ईस्ट को जैसे एवरीबडी यूज्ड टू नो इट एज सेवन सिस्टर्स, फिर उसके बाद 8 हो गया, बट सेवन सिस्टर्स करके एक था, एक यूनिट, बट people in the rest of the country really didn't see it beyond that term seven sisters. और फिर उसके बाद look east policy आया, थोड़ा बहुत जो foreign policy follow करते हैं वो सोच रहे थे okay maybe this is a bridge, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं. दिस होल अष्टलक्ष्मी, इसके बारे में आप बताइए कुछ. यही सबसे बड़ा आयरनी होता है. देश का अभी भी सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्ट से आते हैं. देश का ऑर्गेनिक फूड का द बेस्ट ऑफ द थिंग्स कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट का जो प्राकृतिक शोभा है, आई विल नॉट कम्पीट विद जम्मू कश्मीर, बट हम कहीं से कम नहीं है. That kind of true. I was in Shillong last week. It's so beautiful. हिलने का मन नहीं करता. It's so lovely. मतलब नॉर्थ ईस्ट का अंदर में इतना पोटेंशियल है. प्रॉब्लम यही है, अभी लोगों का मन में क्वेश्चन आया. पहले क्या था, हम लोग तो एक सेट हो रहा था कि ऐसा ही देश चलता है. तो ये पोटेंशियल सुन के ना आई एम टायर्ड. बट क्या ना होटल्स होते हैं, ना रोड्स होते हैं, और फिर देयर इज इंसर्जेंसीज इन मेनी एरियाज. कितनी देर तक हम पोटेंशियल करेंगे ये? 2-3 बात को आपको देखना पड़ेगा. इफ यू हैव ट्रेवल्ड बिफोर 2014 एंड टुडे, yeah there is a नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवे टुडे इट इज नॉट इंफीरियर टू एनी अदर स्टेट. हो गया डन. तवांग में अभी रेल चलना शुरू हो जाएगा, रेलवे लाइन का हो गया. इफ यू लैंड अप इन त्रिपुरा एयरपोर्ट टुडे,
आपको लगेगा भाई ये मैं कहाँ आया हूँ. It is much better than many airport of many other state capitals. आगे जाके अभी अरुणाचल में एयरपोर्ट हो रहा है. तो I want to come back to the basic question. 75 years का जो if you exclude that era from 2014 to now, लोगों का मन में यही था कि एक्सट्रीमिज्म भी नॉर्थ ईस्ट में होगा, बम भी फूटेगा, आपको ऐसा ही जीवन आपके लिए हम लोग बनाया हूँ. दिस इज द लाइफ यू हैव टू एंजॉय For people of North East. फॉर you द mean? पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट. Okay. और हम लोग बम भी फाटता था. वी डोंट गिव अ डेम कि Part, चलो फाट हाँ. गया, पार्ट ऑफ आवर लाइफ. फिर नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आ गया, हमारा मालूम है कोई आएगा हवाई से देखेगा चला जाएगा, बट बिफोर दैट बियॉन्ड दैट नथिंग विल हैपन. एक्सट्रीमिज्म है, बच्चा का मन में कुछ है, लेकिन आप इसको निगोशिएशन टेबल में ले आओ, कोई एफोर्ट नहीं होगा. ये जो सेंस 2014 में सडनली हो गया कि भाई नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी है, नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल है. आपको सुन के आपको लगेगा पोटेंशियल है, बट व्हेन यू विल बी इट विल बी एक्सप्लोर्ड. बट मेरे लिए मेरा बीच में मेरा मन में कुछ है, वो तो मेरा पता ही नहीं था. फर्स्ट टाइम somebody is telling that you have a potential. Okay. तो पहले मेरा क्या है मैं तो जानता ही नहीं था. मतलब to get something you had to go out of the state, right? पहले बच्चों के लिए. पहले like you wanted a job in a असम में beauty एम्स parlor. होगा. You went out. हमको बताया जाता था कि नॉर्थ ईस्ट में एक ही एम्स संभव है, यू कैनॉट हैव टू. तो मेघालय गॉट एम्स ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजिम. जब हम लोग आके दिल्ली में बोला कि एम्स आइए, अरे भाई नॉर्थ ईस्ट में दो कैसे हो सकता है? क्यों? मैंने बोला भाई नॉर्थ ईस्ट तो आपने नाम दिया है, लेकिन स्टेट तो हम 8 है, तो 8 होना चाहिए. हाँ. नहीं भाई नॉर्थ ईस्ट में एक ही होगा. दैट वाज द काइंड ऑफ कांग्रेस कल्चर माइंडसेट. फाइल जाते हैं मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट. मतलब एक मिलेगा राजस्थान को, एक मिलेगा बिहार को, एक मिलेगा मध्य प्रदेश को, और नॉर्थ ईस्ट को एक मिलेगा. तो हाउ विल डेवलप? तो एक जो 2014 में ये ब्रेक होना शुरू हुआ. असम का जो हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है गमछा, वो प्रधानमंत्री लेके जाते हैं, फॉरेन भी जाते हैं. डॉक्टर भूपेन हजारिका को आपने भारत रत्न दिलवाया. और नॉर्थ ईस्ट में यू वेन फॉर यू आर कमिंग फॉर 60 टाइम्स. आपका 60 दौरा हो चुका है. रात भी आपने रुकना शुरू किया नॉर्थ ईस्ट में. सारे मंत्रीगण जाते हैं. तो अभी नॉर्थ ईस्ट वाइब्रेंट हो गया. मैं आपको एक ही बात बताता हूँ. टुडे असम जीडीपी has gone up, and today we are at the rank 17th. Do the other northeastern states feel that Assam is taking all the benefits, all the? नहीं, हमारा तो उल्टा है. आप लोग बड़ा है ना इसलिए. नहीं, हमारा तो उल्टा है. असम का हमेशा एक रोल रहा हिस्टोरिकली. We said that we are the elder sister, so we take care of them whenever it is required. जैसे अभी कोविड हुआ था. But in the matriarchal system is the youngest sister who is getting. No, they will give love and affection, but elder sister will give care. So अभी जैसे कोविड हुआ था, हमने ये रूल किया भाई मुझको भी ऑक्सीजन चाहिए और सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को असम को ही देना है. सो व्हेनेवर दे आस्क फॉर समथिंग वी प्ले आवर रोल. बट असम का लोकेशन ही ऐसा है. यू कान गो टू अरुणाचल अनलेस असम हाईवे इज बेटर. यू कान गो टू त्रिपुरा अनलेस असम हाईवे इज बेटर. मेरा मन है, मैं जो ये आपको आज शेयर करता हूँ, जब प्रधानमंत्री जी जो बोलता है 25 साल अमृत काल है, उसमें भारत में सबसे जो बड़ा आर्थिक शक्ति बन के उभरेगा वो नॉर्थ ईस्ट रहेगा. In spite of insurgency. खत्म हो गया है अभी तो. वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ इंसर्जेंसी. Yeah, you had that surrender with. Now you have only 3-4 आगे तो नॉर्थ ईस्ट में there are hundreds of insurgents. खत्म होते होते लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ. I think we are in the last leg of insurgency. I'll give another 3 to 4 years for the big organization like Alpha, NSC, and I think within this time things will be settled. अमृत काल में नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा पावर होके उभरेगा, ये मैं बोल सकता हूँ. Silently I have seen in last 2, 3, 4 years, Assam has come into the rank of the major states. Today, my GDP is 17. I am just 30,000, 40,000 crore behind Punjab
in next 2 years I'll overstep Punjab. Hmm. Today, Okay. Assam GDP is 5 lakhs crore. Hmm. Punjab GDP is 5 lakhs 55,000. Okay, this was supposed to be the most prosperous state. Yeah, we are wheat basket of the country. Yeah, we are closing in. अभी जब तक And- BMW नहीं आएगा आपके स्टेट में, काफी and लोग then you have to tell. नहीं, I think मेरा जो मानना है in next 5 years, Huh. Assam will go up to Okay. 10-11 rank state में आ So जाएगा. tell me, Assam जब भी बात करते हैं, most people think, oh, Bangladeshi infiltration and you have border related issues with other states. ये दोनों को कैसे करेंगे? And then the anger in people that demographic change हो रहा है and things. देखिए, एक बात है regarding border dispute, मेघालय का साथ हम लोग का सेटल हो गया. अरुणाचल का साथ by 15 नवंबर will resolve. नागालैंड का साथ भी बहुत अच्छा एक माहौल बन रहा है. आई थिंक नॉर्थ ईस्ट इंटरेस्टेड बाउंड्री डिस्प्यूट और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, all these will be resolved during this period. I mean, I'll give 2 years to 5 years. Okay. This is my time limit because in our lifetime we will be out of this. ठीक है. जो कांग्रेस ने 75 साल नहीं कर पाया, या you minus that 8 years, अभी हो जाएगा. And we are in the एक path है आपके right पास. track में हम लोग हाँ. जा रहा हूँ. But demography change is real. Hmm. We are losing our identity. Indigenous people are losing their identity. That is real. I don't know how you can re-establish that. There are a lot of effort. People of Assam are doing lot of experiment. कभी असम एजिटेशन का साथ, कभी एनआरसी का साथ, कभी कोई स्टेट इनर लाइन परमिट का साथ. देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट बाय द इंडिजिनस पीपल टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी. बहुत सारा प्रयोग हो रहा है, बट वी आर नॉट सक्सीडेड. दैट इज वन ऑफ द, आई डोंट नो नाउ, if I say that migrant people, non-migrant people, now 30% of the people who have come recently to Assam, maybe legally they are Indian citizen, but if you see emotionally, they come recently. So अभी तो you evicted 449 families since coming to वो power. तो आपके फॉरेस्ट में नहीं, वो हमें शायद एविक्शन तो 10,000 से ऊपर हो जाएगा, बिकॉज Because- दीज आर वी आर हाँ. ऑल क्लीनिंग फॉरेस्ट एरिया. So why do you have this rule कि 2 एकड़ से ज्यादा you can't own? हमारा सरकार का जो लैंड पॉलिसी है, लैंड पॉलिसी में यही है कि टाउन में यू विल गेट अ सर्टेन क्वांटम ऑफ लैंड, यू कैन हैव इट विथ योर ओन मनी. It sounds very communist to me कि you can only own X amount of No, land. ये थोड़ा आपका गलत फहमी है. हाँ. You can go and you can have any quantity of land subject to the ceiling which apply nationally. अभी अर्बन एरिया में वो सीलिंग भी नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट लैंड, Okay. गवर्नमेंट लैंड अगर मैं किसी को 100 एकड़ दे देता हूँ, देन आई एम डिप्राइविंग अदर लैंडलेस पीपल. सो according to the available government land, you distribute that among the landless in a proportionate basis कि भाई सबको मिले. हाँ. तो on that formula we found that in a rural area, if it is a government land, we can give to a people 2 acres. ठीक है. मतलब एक बढ़िया से आप रहिए, थोड़ा थोड़ा आपका खेत भी होगा, एक घर भी, मकान भी होगा. लेकिन these certain people, they goes inside forest area. and they capture hundreds of acres. So recently Supreme Court में भी affidavit आया कि Assam has the most enclosed forest area. असम का फॉरेस्ट पूरा enclosed हो चुका है. That too the people who migrated from outside the country. But the NGOs say that many of the people who are migrating are people who lost their homes during floods. वो क्या करे, कहाँ जाएं? तो वो देखिए, फॉरेस्ट में चले जाते, कम से कम live off the forest. But फिर क्या करोगे? But can you justify encroachment of forest? अगर आप लैंडलेस हो, आपका फ्लड में घर गया है, मकान गया, you apply to the deputy commissioner. We'll try to find out some way out. बट आप सीधा जाके पेड़ काट के हजारों जो ओरिजिनल जहां लैंड में आप था, यू वर देयर इन 2 acres, बट यू गो एंड एनक्रोच फॉरेस्ट 100 acres. So recently we have evicted from one forest 400 family. We send them back to their original place, जहां से आप लोग आया है. अभी फॉरेस्ट एक साल में
वहां में जो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया. अभी एलिफेंट आर नाउ बैक टू दैट फॉरेस्ट. Okay. सो एक साल में 10,000 से ज्यादा फैमिली को हमने फॉरेस्ट से एविक किया. बट वी एंश्योर्ड that they goes back to their original place. The other thing is that, which I would referred earlier, is about Bangladeshi infiltration. With that comes this whole thing कि ये ISIS का module, madrasa का module, and what is this whole connection? Because you are now, of course, one group will blame you कि आपने मदरसा को क्यों तोड़ा. अगर ISIS model वहाँ से ISIS चल रहा था तो उन लोगों को पकड़ो ना. एटलीस्ट द गरीब मुसलमान जहाँ पे पढ़ने को कुछ नहीं है, कम से कम मदरसा में पढ़ता तो कुछ भी पढ़ता है. देखिए, ये जो दिल्ली में लोग रहता है मोस्टली सेकुलर लिबरल, वो लोग कहानी बनाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने मदरसा को तोड़ा, मैंने गांव का लोगों से पूछा, भाई हम लोग वी विल एडमिट योर स्टूडेंट इनटू द नियर बाय जनरल स्कूल, वी आर गोइंग टू establish a new school if you want in that same place जहाँ पे मदरसा तोड़ा, we are ready to do it. तो but why break it ना, उसी बिल्डिंग में आप चेंज कर लो आपको सिलेबस. मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है. गांव का लोगों को ये मानना है कि मेरा मदरसा बदनाम हो गया. अकॉर्डिंग टू देम द पवित्रता जो एक सेंटिटी होता है दैट हैज बीन लॉस्ट. तो गांव का लोगों ही जाके तोड़ना शुरू कर देता है. बिकॉज हम तो यहाँ कुरान सिखाने के लिए आपको बुलाया था. And Quran is the religion who speak about peace in the world कि भाई शांति होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए. अगर वही इंस्टीट्यूट अल कायदा जिहाद का मॉड्यूल बन जाता है, उनका ऊपर टॉप स्टैंड लेना आपको जरूरत है. और ये सोसाइटी इतना सॉफ्ट भाषा में नहीं चलेगा कि यार आपको जिहादी मिला है तो खाली अरेस्ट करके लेके डाल दो. ये सॉफ्ट एटीट्यूड इज नॉट एक्सेप्टेबल टू न्यू इंडिया. द माइट ऑफ द स्टेट यू हैव टू शो कि भाई देखो गड़बड़ी करेगा तो गया तुम्हारा. यू कैन बी गया बोले तो बंदा भी गया और मदरसा भी गया. यू कैन बी एंटी गवर्नमेंट, यू कैन बी एंटी चीफ मिनिस्टर, यू कैन बी एंटी प्राइम मिनिस्टर, बट यू कैन नॉट बी एंटी इंडिया. ओके. तो आप अगर भारत का खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, जो आपका विद इन द लॉ जो आपको अलाउ करता है, whatever to the extreme you can do, you should do that. और लोग आपको प्रशंसा करता है. लोग हमारा बोले तो the villagers out there were happy कि मदरसा तोड़ा. हाँ, मैं तो आप अगर मेरा साथ आना चाहेगा, आपका क्रू भेजेगा, तो I'll go to that 4 villages and you'll see मेरे लिए लोगों का मन में क्या है. अभी आप बनाएंगे वहाँ पे? हम बोल दिया हूँ, डिस्कशन लोगों में मिस्टर शर्मा, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि I know whenever, like, I don't want to bring it up, but you know when Babri Masjid was pulled down at that time itself, the Prime Minister said, हाँ, when he was asked, मदरसा नहीं बनेगा. Let me be very clear. मदरसा नहीं बनेगा. मदरसा नहीं बनेगा उस जगह में. मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा. तो स्कूल भी बनाओ, मदरसा भी बनाओ ना, क्या फर्क? 100% वहां में स्कूल बनेगा. We are already in talking कि भाई स्कूल कैसा स्कूल बना देना चाहिए. मदरसा ना सर. देखिए, मैं मदरसा का खिलाफ में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है. देश में मदरसा बनेगा ही. बट माई अपील टू द मुस्लिम पीपल, मुस्लिम सिस्टर्स ब्रदर्स, कि भाई आप जनरल स्कूल में जाइए, पढ़िए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए, घर में जरूर जाके कुरान का शिक्षा लीजिए. लेकिन मैं बोलूंगा तो ऐसी मदरसा बंद नहीं करेगा ना. मैं अगेंस्ट जो फॉर है उसमें उनका क्या फर्क पड़ेगा. बट अगर मेरा कोई फॉलोअर है या मेरा कोई फैन है या उसको कोई बेटा मानते हैं, मुझको कोई भाई मानते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा भाई लड़का का करियर खराब मत करो, आप स्कूल में भेजो, डॉक्टर इंजीनियर बनो. बट ए गुड डॉक्टर कैन हैव ए मच मोर कुरानिक नॉलेज देन ए जोनाब इफ यू इवनिंग में घर में सीखो. हमने सनातन कहाँ से सीखा? घर में ही सीखा. तो ये जरूरी नहीं है कि मदरसा में आप भेजो और मदरसा में लोगों को आप कट्टरवाद बनाओ. अगर आपको मदरसा में भी भेजना है, you liberalize the curriculum. So will you do that? Will you liberalize the curriculum? असम में बहुत अच्छा काम मैं ये 20 साल से सुन रही हूँ कि liberalization of curriculum, community CBSE, it's happening in UP, it's happening in Bihar supposedly. कहाँ exactly where it is happening I don't know, but हमने क्या किया, 700 सरकारी मदरसा को हमने बंद किया और that school we transfer to a general school. स्टूडेंट आज भी जा रहा है, स्टूडेंट आज भी
शिक्षा ले रहा है, नो रेजिस्टेंस इन असम. फॉलोड बाय दैट अभी हमने ये डिसाइड किया कि असम में अराउंड 3000 मद्रासाज वेयर दे आर रिलीजियस मद्रासा. अभी हमने कमिटी को बुलाया, भाई जो मद्रासा आप शिक्षा नहीं दे पाते हो, घर को हालत ठीक नहीं है, एंड इन सेम विसिनिटी यू हैव 4-5 मद्रासा, आप नंबर रिड्यूस करो. एंड दे एग्रीड कि हम लोग नंबर रिड्यूस कर लेगा. फिर हमने बोला भाई आप स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करो. हो सकता है वहीं कोई सचिन तेंदुलकर छुपा हुआ है. Now you'll bring things like no hijab and all that नो out there. No. मेरा यही है कि मुझको कोई थिंग लाना नहीं है. कम्युनिटी का साथ बैठ के करो. Okay. और दे आर गुड पीपल. ऐसा नहीं है कि आप बोलने से नहीं बोलेगा. 4 मद्रासा को आई थिंक नाउ इट बिकम 5-6 गिरा. लेकिन असम का मुस्लिम तो स्ट्रीट में नहीं है. दिल्ली का लोग बोल रहे हैं. असम का मुस्लिम तो स्ट्रीट में नहीं है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये सरकार जो कर रहा है ये हमारा कौम को बदनाम से बसा रहा है. Okay. हाउ कैन यू वांट टू लीव विथ अ काइंड ऑफ स्कार कि यू आर एंटी इंडिया. आपका मद्रासा में Okay, tell me now. जिहाद हुआ था. Let me come to the thing of Bangladeshi infiltration. How are you going to stop this from happening? क्योंकि porous border है, cattle smuggling is common. There are million problems. अभी नया इन्फ्लेटेशन कम हो गया है. Okay. इट हैज डिक्लाइन लाइक एनीथिंग. In Bangladesh, they say we not. Nobody wants to go. We're doing well. I will agree to the extent कि अभी इन्फ्लेटेशन in last 1 decade has come down significantly because और कोई लैंड बसा ही नहीं है. अभी बोला कि इरोशन हो जाने से लोग जाके फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं, तो अभी लैंड मास इज नॉट अवेलेबल. सो व्हाट एवर डैमेज हैज टू बी डन दैट इज डन. नाउ इट रीच दैट क्लाइमेक्स. कैटल जाते हैं, दीज आर इकोनॉमिक स्मगलिंग. जो कहीं में हीरोइन आता है, कहीं में कैटल जाते हैं. वी कीप ऑन वर्किंग अगेंस्ट दैट. पर जो आ गया, एक फैमिली का जो 8 से 9 बच्चा का जन्म होता है, उनमें 2 लॉस्ट होता है. हमारा डेमोग्राफी चेंज होता है एंड दे आर इन पॉवर्टी कंटिन्यूअसली. आप पॉवर्टी से बचने के, टू एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी यू केम टू असम, you get a better landmass. Abhi, if you have 2-3 son or daughter, then you can actually take out the family from the poverty cycle. But aap wo nahi kar rahe. Again, you are giving birth to 8 to 9 children. That's the problem. Abhi, demography is more changing because of more homegrown activity. कि देश का अंदर ही जो जन्म हो रहा है. This is now again we are touching that topic. 10-12 children wala. This is why you get the label that you are anti-Muslim, because whenever you say these things, it becomes that हाँ मुसलमान जो है 10-15 बच्चे करता है और हिंदू नहीं करता है. अगर हिंदू 10-15 बच्चा जन्म करता है, उनको भी तो हमको एडवाइस देना जरूरत है. दीज आर यूनिवर्सल एडवाइस, नॉट टारगेटेड टू एनी कम्युनिटी. हिंदू में भी जब 10-12 होता है, अगर होता है, आसाम में मैं नहीं देखता हूँ, अगर है दे शुड कम डाउन टू 2-3. So these are universal messages beyond religion. Right. लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम असमिया लोगों का है with the migrant Muslim families, जो हम अभी बातचीत कर रहा हूँ, there are lot of discussion going on, कि आप फैमिली साइज को कंट्रोल कीजिए, you will be out of poverty cycle. और हमारा भी डेमोग्राफी रहेगा जो आज का दिन में है. अच्छा, Sarma ji, every night on television, all television debates, the Congress spokespersons every night say, when they want to attack BJP, they say, ED वगैरह weaponization हो गया, ED IT का weaponization हो गया. Why you people not investigating Mr. Sarma and Sarda? बट क्या है So सारदा it में becomes, मेरा? and they don't say anything about it. So, मैं यही आपको पूछना चाहता हूँ, कभी कृपा करके उनको पूछिए स्टूडियो में, भाई उनका क्या है सारदा में? इन सारदा केस, बिफोर आई ज्वाइन बीजेपी, they have questioned you. They question me, they put me as witness, not as accused. I went to Mrs. Sonia Gandhi's place. I gave that copy of charge sheet कि मैडम मुझको विटनेस बनाया गया है. तो मैडम ने बोला देखो फिर they are very bad people, they will again bring you. हम बोला हो सकता है, but this is the position as of now.
After 9 Who's bad people? CBI is bad people. BJP people. BJP. That time I was in Congress. Huh. I took the order copy of the Calcutta court and I met Sonia Gandhi. I gave that copy. Ki, madam, I was called. But fortunately, unfortunately, now they have put me in the list of witness. No longer accused. Witness kya kiya gaya? Because I have to give statement against the former union minister. That's a different thing. So then she said, dekho ye look, they are bad people. They will drag you again. So I said, okay, good advice. After 6 months, 7 months thereafter, after struggling to be in Congress, मैंने जाके बीजेपी ज्वाइन किया. तो ये जो कांग्रेस का अभी जनरेशन का स्पोक्समैन है, ये लोगों का बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी वो लोग नहीं करते हैं. आप मेरा ऊपर एक्यूज कर रहे तो मैं जब 22 साल में था, आप मुझको भगा देना चाहिए था पार्टी में. They were friends of yours, no? नहीं, एक बात कांग्रेस लोगों को क्वेश्चन यही करना है, इफ यू आर अगेंस्ट द क्रिमिनल पीपल, इफ यू आर अगेंस्ट द करप्ट पीपल, मेक आउट ए लिस्ट, अभी हटा दो पार्टी से. बट बीजेपी ज्वाइन करने का दिन वो लोग को करप्ट मत बोलो. ये क्या तरीका है? आपका सर जब रहा है, आई विल पुट द सेम एक्यूजिशन. आपका पास जो बंदा रहता है, देन ही इज इन वॉशिंग मशीन. जो दिन बीजेपी ज्वाइन करता है, वो दिन आपका याद होता है उनका ऊपर ईडी है, सीबीआई है. तो यू आर ए बेटर वॉशिंग मशीन ना. Okay. आज आपका जिसको देखो, कांग्रेस से बहुत लोग आने वाला है बीजेपी इन डेज टू कम. They've contacted you. दे आर इन ऑलवेज इन टच विथ मी. यार बहुत लोग आएगा. एक बार मेरा तो लगता है सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ के लगभग सब लोग आ जाएगा एक दिन में. बट डोंट एक्यूज ऑन दैट डे. Okay. If you have list of criminal people, if you have list of corrupt people with you, जैसे वो स्पोक्समैन लोग बताते रहता है, वो लोग को भगा दो पार्टी में, हम लोग ले लेगा. इतने सारे लोग आ रहे हैं आपके पार्टी में, बट बंगाल से कोई नहीं आता. Why do you lose people to Bengal? I think to TMC, sorry. देखिए, मेरा जो लगता What है, is it? Why does the magic not देखिए, work of the BJP in? बीजेपी ने, I mean, you know the East very well. बीजेपी में नंदीग्राम में बंगाल सीएम को हरा दिया. we did that. बट आप देखते रहिए, सारे कुछ जो भारत माँ का आशीर्वाद होता है, जो होना है वो हो ही जाएगा. एक बात मैं कांग्रेस को बोलना चाहता हूं, आप एक लिस्ट बनाइए, कितना लोग आपका पास है जिसका सीबीआई है, जिसका ईडी है, जो आप मानते हो करप्ट है. आप वो लोग को भगा दो पार्टी से. बस ज्वाइन करने का दिन मत बोलो. मतलब जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी का गुणगान गाएगा, दे आर क्लीन. जो दिन बीजेपी आएगा, ओ ही हैड ए ईडी केस, ईडी, बीजेपी बिकम ए वॉशिंग मशीन. अरे तुम ही तो सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन है. अगर मेरा ऊपर कोई केस है, तो मैं जब कांग्रेस का समय में था, आप मुझको क्यों एक्सपेल नहीं कर दिया कि आपका ऊपर केस है, आप पार्टी से भागो. मतलब अगर मैं आज भी कांग्रेस होता था, then I am a clean man. Okay, sir, a couple of questions which I need to ask. One was this attack on you which happened recently. I mean, it's not something that should be taken lightly. कैसे हुआ? क्यों? मतलब नहीं, एक्चुअली हैदराबाद का मैं, so ये माइक थोड़ा पास कर लो. हाँ, मैं हैदराबाद बीच बीच में जाते रहता हूँ. बट अभी मैंने देखा हैदराबाद इज समथिंग डिफरेंट. देयर आर लॉट ऑफ एंगर ऑफ पीपल अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट. I was there purely for a non-political function, Ganesh Chaturthi wala. पता नहीं, he come to me and he said, भाई, why you are speaking against my CM? तो मैंने बोला, भाई मैं तो बात भी शुरू नहीं किया हूँ. I have not even started speaking. Correct. तो मेरा थोड़ा हंसी उठा. बाद में मैंने लोगों को पूछा, भाई ये क्या है? उनको लगा कि मैंने कुछ बोलूंगा टीआरएस का खिलाफ, सो पहले से ही वो बना के रखा था. बट बिलीव मी, आई वॉज देयर. माई, इफ यू सी माई स्पीच, दैट वॉज ऑल अबाउट लॉर्ड गणेश. Are, sir, you are trying to be so soft. Tell me, you think other chief ministers are not going to be scared after what happened with the whole Shinde episode? वो लोग क्या करने आए थे? अच्छा, हमको बताओ. वो राइनो देखने तो आए नहीं, वो आपका फ्लड सिचुएशन देखने तो आए नहीं कि हाँ, how to manage floods. They have come and they said that we will be in Guwahati. They came on their own. You didn't invite them. आप देखिए, आप अभी इंसर्जेंसी नहीं, you invited them. आप देखिए, आप अभी इंसर्जेंसी का बात बोल रहे हैं.
हाँ. थोड़ा देर पहले when we talk. But the fact that Maharashtra Chief Minister and entire his colleague, उनको लगा कि Guwahati is the safest destination. I think that thing should be in everybody's mind. And सारे महाराष्ट्र का लोग असम में आना चाहिए tourism के लिए because there is nothing. They came for tourism. Everybody knows that you played the perfect host. अब कब ये बात कब निकलेगी? After 15 years when you write your book. I think मेरा यही मानना है कि they came. See, non-BJP chief ministers are really worried about you now. देखिए मेरा यही बोलना है कि नॉन बीजेपी सीएम आप लोग अगर और ही होना है राहुल गांधी का ऊपर ही आप तकलीफ कीजिए, चिंता कीजिए, हमारा ऊपर नहीं. तो यू लुक रोज तो आप केजरीवाल को इतना मोहब्बत करते हैं आप ट्विटर पे. दिल्ली सीएम का थोड़ा मेंटेलिटी अलग है. मैं आपको एक ही बात में समाप्त अलग बोले तो पता नहीं कैसा है. आप दिल्ली हो, आपको कॉन्टेस्ट किसका साथ करना है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बेजिंग. आप जाके देश में बोलते हैं कि दिल्ली में वो है. अरे दिल्ली में तो होगा ही होगा. दैट इज द इंडियाज कैपिटल. हाउ दिल्लीज थिंग्स कैन बी रेप्लिकेटेड बाय मणिपुर? हाउ दिल्लीज थिंग्स कैन बी रेप्लिकेटेड बाय असम? आप दिल्ली हो. यहाँ भारत सरकार भी तेल डालते हैं, आप भी तेल डालते हैं. हम तो खाली वहाँ हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही तेल डालते. तो यू आर दिल्ली. आप दिखाता है मेरा मोहल्ला क्लिनिक देख के आ जाओ. अरे कौन देखेगा आपका मोहल्ला क्लिनिक जो बॉक्स में होता है? उससे तो असम में अच्छा मेडिकल कॉलेज है. ऑल्दो आई डोंट वांट टू कम्पीट विद दिल्ली. अगर दिल्ली को आपको कंपटीशन में लाना है, थिंक हाउ व्हाट इज द एकेडमिक एटमॉस्फेयर इन न्यूयॉर्क, लंदन में क्या है, बेजिंग में क्या है. यू टेक दिल्ली टू दैट स्टेटस. मैं गुवाहाटी में हूं. आई विल फॉलो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, Bangalore, and I'll try to bring my state to this standard. And Chennai, Mumbai will try to bring their state to the level of Delhi and beyond. वो एक होता है. So it's not so much about Mr. Kejriwal, but it's नहीं, उनका दिमाग में कहाँ से घुस गया मेरा पता नहीं है. दिल्ली टू मैं जब बच्चा से दिल्ली आया था तब से ही दिल्ली इज बेटर देन असम. लेकिन अभी तो दिल्ली का गिरोवाड हो गया ना. आप मोहल्ला क्लिनिक को मुझको दिखा रहा है. दिल्ली में हर गली में एक एम्स होना चाहिए. हर मोहल्ला में देयर शुड बी वन एम्स. बट वो दिखाने के लिए हमको ले आइए. ही गेट्स अनॉयड. ही सेज मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ या व्हाटएवर बिकॉज़ द सेंटर बीजेपी मेरे पीछे पड़ी हुई है. तब जाके घर में बैठो. ओके. ये कहाँ रोना धोना है. अगर आप सीएम हो then you know that on your path there will be challenges, there will be opportunity. Correct. जो दिन आप फीता काटेगा वो दिन बोलेगा मैं किया. और जो दिन आपको कुछ फीता काटने का मौका नहीं मिलेगा बोले नहीं मोदी जी ने कुछ नहीं दिया इसलिए हमारा काज कोई काम नहीं है. You don't take the power without accountability. और अगर पावर का साथ सॉरो भी एंजॉय रहता है, जॉय भी होता है. इफ यू आर एंजॉयिंग द जॉय देन एक्सपीरियंस द सॉरो ऑल्सो. कहाँ आपको हमेशा ये केजरीवाल जी का मानसिकता ऐसा है कि हम केजरीवाल है इसलिए मेरा सामने कोई भी अधिकारी they should not ask any question. अच्छा Mr. Sharma, lastly I want to ask you this, that there are lots of people who, you know, political watchers across the country and all, just winding up sir. तो उसमें बहुत से लोग बोल रहे हैं कि India is heading towards a single party रूल जो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है. बिकॉज there's nobody left in the opposition and it's okay. I can understand. बीजेपी कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है कि हम ऑपोजिशन बनाएं. बट आप लोग सिस्टमैटिकली ऑपोजिशन से अगर लोग पोच करेंगे थ्रू व्हाटएवर मीन्स. देखिए डेमोक्रेसी दो तरफ चलता है. एक है कि ऑपोजिशन और व्यूज डिफरेंट ऑफ व्यू आप बोलने के लिए आपका बहुत सारा फोरम डेमोक्रेसी आपको देता है. You can go to the court, you can go to any public forum, you can, so opposition is inbuilt to our system. लेकिन opposition का नाम में आप गांधी फैमिली को मत रखिए. Okay. वो expired drugs है. Okay, that's a new term. They cannot even perform the role of opposition because they never think that we are in opposition. अगर वो सचमुच अपोजिशन हो जाता था. so you're saying अभी 10 साल के बाद मतलब 8 साल हो गए अभी तो मेंटालिटीज अभी भी रूलिंग पार्टी. बिकॉज़ वो
आगे पीछे तो होता ही है ना. तो तामझाम. you still feel हाँ. अगर देश में अपोजिशन ही सही है, सचमुच अपोजिशन बना लो. हाँ. But they are not opposition. Their opposition party है नाम में, लेकिन उनका मन में है नहीं we are the ruling party. Because of the idea of India. हाँ, वो लोग को लगता है कि मोदी जी पीएम का सीट कहीं जबरदस्ती में बैठा हुआ है, वो सीट तो हमारा है. So वो लोग opposition नहीं है, वो लोग they lived in opposition with a great sense of anger. भाई हमारा सीट में वो लोग बैठा हुआ है. ये थोड़े opposition है. The legitimately the opposition seats belongs to you. Because आप opposition बनो. इवन ब्यूरोक्रेसी भी ऐसे ही सोचता है ना कि नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस इंडिया में कांग्रेस पार्टी रहा है. That you need to demolish. हाँ. Then you will have a proper democracy. I see. अभी जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, कहीं डेमोक्रेसी नहीं था बिफोर 2014. किस लिए? इट वाज अ सिंगल रूल. 2014 से पहले डेमोक्रेसी नहीं था क्या? एकदम कहाँ डेमोक्रेसी था? आप कितना सरकार 356 में कितना स्टेट सरकार तोड़ा गया था. आपको एयरपोर्ट में किसी को रिसीव करने ना आओ, नेक्स्ट डे योर गवर्नमेंट गोज, यू आर नॉट सीएम. कांग्रेस का समय में भारत में कितना सीएम चेंज हुआ. कांग्रेस का समय ने भारत में कितना सरकार को डिस्टेबलाइज किया गया. इफ यू टेक आउट द हिस्ट्री, दैट वाज वन पार्टी सिस्टम. Narendra Modi is a challenger to that one party system. Okay. He is a challenger. He is challenging the hegemony of Congress. And Congress people is not digesting that. So 2024 is going to be fight of this. 2024, to sum up my discussion, 2024 will be again, you will see Modi coming back to power with a much more higher majority. Okay. But these are transitional. And you will stay in Assam? वो तो जो बोलेगा, मेरा कोई अपना कोई डिसीजन नहीं है. But these are transitional. After Congress is wiped out, new political party will emerge who will come out with the sense that we are a opposition. Okay. We need to oppose the government. And then the normal power play in India will start. जो हो रहा था, जो महात्मा गांधी जी का लीजेसी को अप्रोप्रिएट करके जो बना 75 minus this 8 years, these were bad time of Indian democracy. Okay. It was a one party system. आप one party भी हो जाओ, one family rule. और आज मेरा आई फील लाफिंग कि आपने फैमिली रूल बनाया वन फैमिली का, और अभी बोल रहा है मोदी जी इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया. मतलब you want to promote that institution where entire India is runs from 10 Janpat. Sorry, that institution you will not get back. Right. Thank you so much for speaking with us. Thank you for watching or listening to this interview. Whichever platform you watched or listened to it, please like and subscribe. I'm Smita Prakash. Namaste. Jai Hind.